Once Jesus asked the disciples, एक बार प्रभु ने अपने चेलों से पूछा, who is great among you? तुम सब में से सबसे महान कौन है? The one who sits in the table or the one who serves in the table? जो टेबल पे बैठता है कि जो नौकर आके टेबल पे काम करता है? Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, the one who serves at the table is the greatest in the kingdom. उसने कहा कि प्रभु के राज्य में जो सेवा करता है वो सबसे महान होता है। The world things are different. दुनिया में लेकिन उल्टा होता है। In the kingdom, God has set His principle. The one who serves people is the greatest among all. लेकिन प्रभु के राज्य में उसने ये नियम रखा है कि जो दूसरों की सेवा करता है वो सबसे महान होता है। Jesus said, I myself serve like that. प्रभु यीशु ने कहा कि मैं खुद यहाँ पे सेवा करने आया हूँ। We know that Jesus is the most humblest man in the earth. हम लोग जानते थे कि प्रभु यीशु सबसे नम्र व्यक्ति थे जो ये दुनिया में आए थे। We hear that he became man and he became humble and he became servant to till death. हमने सुना कि वो एक इंसान बना, फिर एक नौकर बना और वो बस अपने आप को नम्र बनाते ही गया। And Jesus taught his disciples, you become like me in serving others. तो इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा कि तुम्हें भी मेरे जैसे बनना है दूसरों की सेवा करने में। So he always he came to serve, not to be served. तो हमेशा वो सेवा करने के लिए आया, इसलिए नहीं आया कि दूसरे लोग उसकी सेवा करें। Jesus taught us, you be a servant, not you always expect. You don't expect other to serve, but you become servant to everybody. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि कभी भी ये आशा मत रखो कि दूसरे तुम्हारी सेवा करें, हमेशा दूसरों की सेवा तुम करो। That always encourages me and challenges me to become like him. उससे मुझे हमेशा प्रोत्साहन और चुनौती मिलती है उसके जैसे बनने के लिए। We all like others to serve us. हम लोग को सबको अच्छा लगता है कि जब दूसरे हमारी सेवा करते हैं। But Jesus said, you be a servant to everybody. लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि तुम दूसरों की सेवा करो। Most of the time, our own pride, बहुत बार हमारा खुद का घमंड, our own selfishness, हमारा खुद का स्वार्थ, expect others to come and serve us. उसकी वजह से हम लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग आके हमारा सेवा करना चाहिए, Others to come and talk to us. दूसरे लोग आके हमसे बातें करना चाहिए, Others to come and encourage us. दूसरे लोग आके हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, Others to come and appreciate us. दूसरे लोग आके बोलना चाहिए कि हाँ तुम अच्छे हो, Others to come and give us. दूसरे लोग आके हमें कुछ देना चाहिए। Most of the time, my own pride and my selfishness has done that. बहुत बार मेरे खुद के घमंड और स्वार्थ की वजह से मैं ऐसा सोचता हूँ। Jesus said in Matthew chapter 7, whatever you want others to do to you, you do to them. लेकिन प्रभु यीशु ने मत्ती चैप्टर 7 में कहा है कि जो कुछ भी तुम चाहते हो दूसरे तुम्हारी ओर करें, तुम भी उनकी ओर वही करो। That's one of the important commandment which Jesus gave. ये बहुत ही जरूरी आज्ञा था जो प्रभु ने दिया था। Many times I have disobeyed those commandments. और कई बार इसका पालन मैंने नहीं किया, Expecting others to come and serve and give. ये आशा रखते हुए कि दूसरे लोग आके मेरी सेवा करने That's चाहिए। where challenge comes when you look to Jesus. He becomes so a great example in his life, and we may be serving, but Jesus served as a humblest servant in the earth. तो इससे मुझे चुनौती मिलती है प्रभु के उदाहरण से कि हमेशा वो दूसरों की सेवा करता था और मुझे भी वैसे ही उसके पंक्तियों में चलना Serving with a great humility. हमेशा एक नम्र आत्मा से और दूसरों का सेवा करता था। He was even willing to wash the disciples' feet. वो अपने चेलों का पाँव भी धोने के लिए तैयार था। We know that even after resurrection, we can see him that when he was resurrected, he did not suddenly run away, rush away, but he waited and he folded his own clothes. He did not expect somebody else could come, even the angels could come, hold his clothes. वापस जी उठने के बाद भी वो ये नहीं सोच रहा था कि कोई और आके उसको कपड़ों को ठीक से रखना चाहिए, उसने खुद अपने स्वयं अपने कपड़ों को उसने ठीक से रखा। That's where we see the greatness and the example in Jesus Christ. He never expected anyone in his life to serve him, but he became servant to everybody in his life. तो वहाँ पे हम लोग प्रभु में उदाहरण देखते हैं, उसकी महानता देखते हैं कि कभी भी उसने ये आशा नहीं रखा कि दूसरे लोग आके उसकी सेवा करें, लेकिन हमेशा वो दूसरों की सेवा करता था और खुद का काम भी वही करता था। That's a challenge for me and each one of us to become humblest and servant for him. तो ये एक चुनौती हम सबके लिए है कि हम लोग खुद को नम्र बनाएं और दूसरों की सेवक बने। We see another example. और एक उदाहरण हम लोग देखते हैं 2 Corinthians दूसरे कोरिन्थियों में chapter 4 चैप्टर 4, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 4 verse 5. वाक्य 5। वाक्य 5। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। Here we see another example, the Paul himself who followed Jesus, and he could say, as I follow Christ, you follow me. यहाँ पे हम लोग और एक उदाहरण देखते हैं अपोस्टल पौलुस का, जो कहता है कि जैसे मैं प्रभु का पीछा करता हूँ तुम भी मेरा पीछा करो। He was a great disciple of God. He is a great example for each one of us. He was always looking to Jesus and he is obeying and following Jesus Christ. वो प्रभु का एक बहुत ही महान चेलक था, हमारे सबके लिए उदाहरण है। हमेशा वो प्रभु यीशु की ओर देखता था और बोलता था कि तुम भी मेरा पीछा करो। As he grew in Christian life, he became more and more humble and more servant. जैसे जैसे अपने मसीह जीवन में बढ़ते गया वो और सेवक बनता गया और नम्र बनते गया। The servant can be different types. The servant, we know that.
The servant. Servant can be two different. तो दो तरीके के सेवक हो सकते The हैं. servant can serve and he can expect anything in return back. Maybe एक- salary, maybe something else. एक ऐसा नौकर जो काम करेगा लेकिन फिर उसके बदले में पैसे या कोई और चीज का आशा रखेगा. But Paul became the bond slave because he loved Christ so much. That's why he could serve. Because out of his love he served. लेकिन अपोस्टल पॉल गुलाम बन गया था. वो प्रभु से प्रेम करता था और वो प्रेम की वजह से वो प्रभु का सेवा कर रहा With था. the greatest humility, the greatest love towards Jesus Christ, he became bond slave to Jesus Christ. नम्रता और प्रेम की वजह से वो प्रभु यीशु का गुलाम बन पाया. That's why he could encourage each one of us and he could challenge each one of us to follow him as he followed Christ. उसकी वजह से वो हमारे सबके लिए उदाहरण बन सका और हम सबको प्रोत्साहन दे सकता है कि जैसे मैं प्रभु यीशु का पीछा कर रहा हूँ तुम भी मेरा पीछा करो. In Luke chapter 17, लूका चैप्टर 17 verse 7, वाक्य 7 to 10. 7 से 10 वाक्य 7 से 10. इनमें से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो और जब वह खेत से आए तो उसे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ और यह न कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना. क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी. Here we see Jesus sharing a great example and to each one of us. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु एक उदाहरण दे रहा है हम सबके लिए. What is the mean to be a bond slave or slave to Jesus Christ? गुलाम होने का मतलब क्या होता है? He is the one who works throughout the day and he comes in the evening, yet he is restlessly, he is expected to serve the master. तो वो पूरा दिन काम करके आएगा लेकिन इसके बावजूद भी रात के समय पे लोग उससे आशा रखते हैं कि वो और भी काम करेगा और भी सेवा करेगा. He will not have an attitude towards his master, how he is so merciless, how he can do that. I have to do everything, I have to work outside, I have to work inside. How long I will do this? वो कभी भी अपने मालिक की ओर ऐसा नहीं सोचेगा कि इसके मन में कोई करुणा नहीं है, कुछ दया नहीं है, मैं बाहर काम करके आया हूँ लेकिन अभी भी आशा रख रहा है कि मैं घर पे आके भी मैं और काम करूँ. And verse 9 says he does not expect any thankfulness. He will not expect anything. He will not expect people to come and master to come and appreciate or encourage or give a nice word or tell nice word about him. और वो अपने मालिक की ओर से कोई भी धन्यवाद या कोई भी चीज की आशा नहीं रखेगा. इसके बावजूद भी इसने इतना काम किया है. He is always there, ready to serve any time throughout his life. वो हमेशा तैयार रहते हैं, अपने जीवन भर तैयार रहते हैं कि हमेशा काम करें और मालिक की सेवा करें. And after serving, and just you have to humbly say that I have done. If you are following all the commandments, whatever Jesus commanded, if you are obedient to his commandment, we have to say, I'm still, after obeying everything, he said that I'm an unworthy servant. उसी तरीके से अगर हम लोग भी प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसका हर नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके अंत में हमें कहना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई भी महान चीज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उसका नौकर हूँ और उसके बताए गए राह पे मैं चल रहा हूँ. That's what Jesus teaches. Even though you can be a servant, but live in humility, serve in the humility till your death. उसी तरीके से हमें एक नौकर की तरह जीना है, सेवा करते रहना है, लेकिन हर नम्रता से सेवा करना है. Without expecting anyone, without demanding anyone, without asking anyone, you become servant with the humility. बिना कोई आशा रखे हुए दूसरों की ओर से तुम बस नम्र बनो और दूसरों की सेवा करते जाओ. So these are the verses and these are the life of Jesus' example and also Paul's example encourages each one of us and challenges each one of us to become like Jesus Christ in every day. तो यहाँ पे प्रभु यीशु और अपोस्टल पौलुस के जीवन से हमें उदाहरण मिलता है, चुनौती मिलती है कि हमें भी नम्र बनना है और दूसरों की सेवा करना है.